A very warm welcome to the class 8. So let's start today's chemistry class. As you know, we are discussing chapter 5, coal and petroleum. And student, today we are going to complete this chapter. So student, in this chapter, we have already learned about exhaustible and inexhaustible resources. Like inexhaustible resources which are present in limitless, and the exhaustible resources which are present in limited. And we have studied about some exhaustible resources, like we have studied about coal. We have done what is coal, how it is formed, and how much time it need to form the coal. And we have already done about the discussion on the coke, coal tar, coal gas. And we have done the second exhaustible resources, that is petroleum. And we have done that petroleum is not only about the petrol, it's only about petrol, diesel, kerosene, gases, etc., crude oil. Okay. And we have done refining of petroleum. What is the meaning of refining? Refining, when we are going to separate the components of the petroleum, like petroleum includes kerosene, natural gas, etc. So we have to separate these components from the petroleum. So refining is a term in which process of petroleum, process of separation of components from the petrol, that is known as refining. And the next exhaustible resource, in yesterday class we have done about natural gas. The natural gas, we have learned about natural gas, that is a CNG, compressed natural gas. It is also formed as same as the petroleum formed. The millions of year लग जाते हैं और decomposition होने लग जाता है under the high pressure and high temperature, जहाँ पे water level नहीं पहुंच पाता, below the water level natural gas हमारी formed होती है. And today we are going to discuss some natural resources are limited. तो आज हम पढ़ेंगे कि कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं. सो पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा था. हमने एक फर्स्ट टर्म पढ़ी थी एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में, दैट इज कोल. इफ यू आर गोइंग टू वॉच दिस पिक्चर, तो यू कैन सी कि किस तरीके से कोल को, ये कोल माइनरी मशीन है, किस तरीके से कोल को यूज किया जाता है. तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट, कोल क्या होता है, ब्लैक कलर का हार्ड एक सब्सटेंस होता है, एक कार्बन सब्सटेंस होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द डेड plants. When these dead plants buried under the soil under the high pressure and temperature, and in the absence of the hydrogen and oxygen gas, they slowly convert it into only carbon will left, and this carbon is slowly converted into coal. And this whole process, when the dead plants change into coal, that is known as carbonization प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि हम डेड प्लांट्स को बहुत टाइम लग जाता है उनके उसको चेंज करने के लिए, पूरे कोल को चेंज करने के लिए उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. और इस तरीके से हमारे कोल की जो माइल्स होती है, इस तरीके से कोल को इकट्ठा किया जाता है और इस तरीके से उसको यूज किया जाता है. द नेक्स्ट एग्जॉस्टिबल प्रोसेस हमने पढ़ा था, दैट इज अबाउट पेट्रोलियम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So students, we have done in petrol that petrol is an unpleasant or dark, oily, thick, oily substance. It includes gas, petrol, diesel, केरोसिन, नेप्था, विटामिन एक्सेट्रा. हमने पढ़ा था पेट्रोलियम वर्ड्स और इन सब चीजों से मिलकर ही होता है. पेट्रोलियम इज नॉट अबाउट द पेट्रोल, कि पेट्रोलियम जो होगा वो पेट्रोल से रिलेटेड नहीं है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. तो हमने पढ़ा था पेट्रोल को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं. हमने पढ़ा था पेट्रोल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. इफ अगर पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होंगे, तो जो हमारे व्हीकल्स हैं तो हम इनको रन नहीं कर पाएंगे, हम इनको चला नहीं पाएंगे, तो लाइफ एकदम से रुक जाएगी, है ना. तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है पेट्रोलियम, जिसकी अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हेन वी going to separate these substance, these components of the petroleum, so we use fractional distillation process. So this is the fractional distillation process class, जिसमें कि पेट्रोलियम को सेपरेट, पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है.
है ना, जिसमें कि पेट्रोलियम कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है एंड इट वर्क्स डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज डिफरेंट मिक्सचर। और ये डिपेंड करता है कितने डिफरेंट मिक्सचर्स हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इस पे टॉप पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट उससे कम इस तरीके से। वो स्टूडेंट जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नीचे एज अ रेसिड्यू रह जाता है, उसको सेपरेट करना दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो हमने पढ़ा कि जो पेट्रोलियम को हम रिफाइनरी के लिए भेजते हैं इनटू द रिफाइनरी मशीन्स, सो इट विल वर्क ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। दैट लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम and the highest boiling point at the collected at the bottom of the fractional distillation column. So if this is a way to separate the different components of the petroleum, that includes gas, it includes gas, petrol, naphtha, kerosene, diesel, bitumen and crude oil. The third we have discussed about the crude oil, and crude oil भी हमारा एक तरह से exhaustible resources होता है जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब देखिए पेट्रोलियम और गैस हमारे किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये एक और क्विक रिवीजन है। टाइनी मेरिन प्लांट जो हमारे समुद्र के प्लांट्स होते हैं, समुद्र के एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो ओशन के फ्लोर पे रह जाते हैं। तो काफी टाइम होने के बाद ये क्या होते हैं, ये एक लेयर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं बाय द डिकम्पोजिशन, और इसको करने के लिए 300 to 400 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। Over millions of years, these remains were buried deeper and deeper, or under the high pressure, high heat, they remain into the oil and natural gas. तो स्टूडेंट जितना भी हम अंडर द अर्थ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई हीट होती है। तो इसमें क्या होता है, ये स्लोली स्लोली डिकम्पोज होते रहते हैं हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में। Today we drill down through layers of sand, slit and rock to reach the rock formation that contains oil and natural gas deposit. अगर हम ड्रिल करते रहेंगे हमारी लेयर्स को, सैंड, स्लिट और रॉक को, तो हम एक ऐसी जगह पहुंच पाएंगे जहां पे रॉक की फॉर्मेशन होगी और जिसके अंदर हमें ऑयल और नेचुरल गैस मिलेंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस जो होता है, इस तरीके से हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बनते हैं। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। Now, next we have already discussed in yesterday class about natural gas. So, natural gas is also a fossil fuel like the coal and petroleum. It is also used as a CNG, like compressed natural gas. And as you know, compressed natural gas is less polluting and it is a cleaner fuel. That is why it is used. The biggest advantages of CNG gas is that it can transport long distance through small पाइप्स। इसको हम बहुत ज्यादा दूर तक भी ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्मॉल स्मॉल पाइप्स। ये स्मॉल पाइप में भी ट्रांसफर हो जाती है एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज है इसका। सेकेंड एडवांटेज है ये बहुत क्लीन फ्यूल है। थर्ड एडवांटेज है ये लेस पॉल्यूटिंग होती है। तो नेचुरल गैस भी स्टूडेंट हमें अंडर द अर्थ ही मिलती है, जैसे कि हमें पेट्रोलियम मिलता है। लाइक जैसे कि जब ये डेड ऑर्गेनिज्म ये जब मर जाते हैं, डिपोजिशन हो जाता है under the high temperature, under the high pressure, slowly it take 300 to 400 million year and they slowly get converted into gas, or we can say converted into exhaustible resources. तो हमने पढ़ा कि ये हमारे कितनी ज्यादा टाइम लेते हैं। It takes long time to change into exhaustible resources. If they will finish, अगर ये एक दिन खत्म हो जाएंगे तो our life will स्टॉप, हमारी लाइफ जो है रुक जाए। क्योंकि आजकल हम किस पे डिपेंड हो गए हैं, पेट्रोल पे, डीजल पे, सीएनजी पे। अब जिसे को वर्क करने के लिए जाना होता है, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, कहीं भी जाना होता है, हम स्कूल जाते हैं, तो हमें इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक लाइफ क्या होती है, हम उस चीज के यूज्ड टू हो जाते हैं। सो वी तो हमने देखा कि हमें ये प्रण करना चाहिए, वी शुड कंजर्व दिस एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि कुछ जो चीजें नेचुरल बन रही हैं वो भी लिमिटेड है। अब ऐसा तो नहीं है कोल और पेट्रोल को हम बना रहे हैं, नहीं, वो भी नेचुरल ही बन रही है, नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, बट दे आर इन लिमिटेड। सो हमने इस चैप्टर में पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें 2 टाइप्स के मिलते हैं।
एक जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे लिमिटेड होते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड वी शुड सेव देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। बट हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, लाइक सनलाइट, है ना, हमें इसको बनाना नहीं है, हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। So student, we have studied in the beginning of this chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forests, minerals, etc. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required dead organisms millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the no reserves of their will last only a few hundred years. हमें पता है कि इनको कितना ज्यादा लगता है, 100 years लगता है. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. अगर हम इन fossil fuels को use कर रहे हैं, forest की लकड़ियों को use कर रहे हैं, पेट्रोल को जला रहे, तो ये क्या होता है, ये एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं. इनका सबसे ड्रॉबैक ये हो जाता है दैट इट इज अ मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. सो देयर इज यूज इज आल्सो लिंक्ड टू द ग्लोबल वार्मिंग. तो इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना है. अब जैसे हमने पढ़ा सीएनजी के बारे में, इट इज लेस पॉल्यूटिव, वी शुड स्विच ऑन द नेचुरल गैस बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग. तो हमें इन चीजों को स्विच करना चाहिए, हमें पेट्रोल डीजल के अलावा ऐसे क्लीन फ्यूल्स को यूज करना चाहिए. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. हमें इन fossil fuels को तभी यूज करना है स्टूडेंट्स जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर आपके घर में 4 लोग हैं जो काम करने जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 4 के 4 अपनी अपनी गाड़ी से जाएं, वो बस भी यूज कर सकते हैं. तो हमें इनको जहां हम सोच सकते हैं अपना बचा सकते हैं, हमें उस जगह इन चीजों को बचाना है. This will result is better environment, smaller risk and global warming and their availability for a longer period of time. और ये हमारे, अगर हम इनको wisely use करेंगे, so it will be available for a longer period of the time. और आपको जैसे पता है, अगर हमारे fossil fuels नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. तो हमें इन चीजों को बचाना है. ठीक है. In India, Petroleum Conservation Research Association like PCRA, Petroleum Conservation Research Association, advise people how to save petrol, diesel while ड्राइविंग. तो पीसीआरए क्या है, एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जिन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं. कैसे ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. हमें आप देखते हैं जब हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें उसमें ज्यादा हमारा जो ये रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट और एक मॉडरेट स्पीड सेट कर लेनी चाहिए. Switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. तो हमें इस इंजन को स्टॉप करना है अगर हम ट्रैफिक लाइट्स पे हैं, रेड लाइट्स पे हैं, और हमें ऐसी जगहों पे, प्लेसेस जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम वेट कर रहे हैं, तो वहां पे अपने इंजन को हमें स्विच ऑफ करना. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. हमारे जो टायर्स के प्रेशर होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स. और हमें टाइम टू टाइम अपने व्हीकल्स की मेंटेनेंस रखनी चाहिए. ऐसा तो नहीं कि ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करे. आपने देखो किसी किसी में बहुत ज्यादा स्मोक आता है, पोल्यूट करता है किसी किसी का व्हीकल्स, तो हमें उस चीजों को टाइम टू टाइम अपनी व्हीकल्स को सर्विस पे देना चाहिए, है ना. सो दीज आर द 4 ways that how can we conserve पेट्रोल और डीजल. So I hope कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे और अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे. So students, we have completed this chapter. In this chapter, we have learned about coal, coal gas, coal tar, coke, fossil fuels, natural gas, petroleum and petroleum refinery. We have also learned that coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. Fossil fuels were formed from the dead remains of living organisms millions of years ago. Fossil fuels are exhaustible resources. Coke, coal tar, coal gas are the products of the coal. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin, wicks, lubricating oil are obtained by refining of petroleum. Coal and petroleum resources are limited, so we should use them judiciously.
Okay, so this is the main slogan, or that how can we conserve petrol and diesel. Petrol and diesel will not last forever. Save it for your चिल्ड्रन. तो हमें इन सबको सेव करना है. में जिस तरीके से पानी की हर एक बूंद जरूरी है, इसलिए हमें हर एक बूंद पेट्रोल और डीजल की हमें एक और आगे तक, थोड़ा और आगे तक ले जा सकती है. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स ऑन द रोड. अगर आप स्कूटर पे हैं, स्कूटी पे हैं, बाइक पे हैं, अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम भी हमें अपनी स्कूटी, बिकॉज वट एवर विद यू, हमें उसको स्विच ऑफ, उसके इंजन को स्विच ऑफ रखना है. So students, I hope you all have understood this chapter very clearly. If you have any doubt, watch all my videos on my YouTube channel. And if you have any doubt, you can contact me. Thank you.